देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। गृह मंत्री अमित शाह बोले, अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह अब 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे लोनावला के भोशी डैम में एक ही परिवार के 5 लोग डूबे, 3 के शव बरामद, 2 की तलाश जारी। पुणे के लोनावला इलाके में भोशी बांध पर एक बड़ा हादसा हो गया है। पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 सदस्य पानी में डूब गए हैं, जिनमें से 3 के शवों को बरामद कर लिया गया है। बाकी 2 बच्चों की तलाश जारी है। हादसा पानी में नहाने के दौरान हुआ है। The rescue operation was started yesterday afternoon, and we were successful in recovering 3 bodies, but 2 bodies of missing children that still we have not yet found. It's continuously raining since, because yesterday night around 7:30 the rescue operation was stopped because of the safety of the divers, and early in the morning today again at 8 o'clock we have started it. So INS Shivaji divers are now basically finding. Shivadurga volunteers also trying their best to recover the bodies, and search is on, but because it's raining the water level is rising and it's quite windy also, so there are problems. There are definitely hazard. The rescue operation gets interrupted. It's difficult also, but we'll definitely recover those 2 bodies. So it's a very difficult terrain, we also came here also. Do you want to make an appeal, like, people, why people are coming on, difficult places with the kids and women? Again, this is again a very important issue here, because this is inhabited spot. Nobody comes normally here. It is a private property, but surrounded by forest and railway. So it's a prevented zone. And I think the families came here with the kids, and they were not sure about the water flow, because it's a major waterfall there, and the water literally gushes to the dam. It is hardly 150 meters from the dam wall, so it is quite deep also. And suddenly heavy rains, these are not consistent rains, and suddenly the rain's intensity increases, and that increases the water level suddenly, and that's what happened. And I appeal to all the tourists who are coming here that you be responsible. Tourism, you must come and enjoy the nature, enjoy the rains, and that is the beauty of Lonavala. But don't go near these water streams, don't go near these waterfalls, because it's dangerous. And then the self-restraint, self-discipline is important, because any institutional mechanism has its limitations. Yes. And we will try our best to prevent these mishaps. But again, there is a sincere appeal from all of us, from the police, from the forest, from revenue administration, the district administration, that you please be more responsible in visiting the places. Will you be issuing some kind of advisory, because the Pune has a lot of such places, and visitors and the tourists generally goes there on the weekend. We have already issued advisory. We already have a disaster management plan in place. But now, looking at these incidents, we will be definitely issuing prohibitive orders for these kind of dangerous places. Because yesterday also there was an incident which happened at Tamani. There is another incident, and then these are these were like trekkers, and we just tried to jump in a water which is too deep. So
but then we don't want to dampen the spirit of tourism or the spirit of adventure, but at the same time responsible tourism, responsible adventure is the need of the day. But we will definitely have things in place, and we will issue orders which are necessary. Last question, sir. Although the video is शाहदरा जिला की जगतपुरी थाना इलाके में एक महिला की अपने मालिक की दुकान में संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक की पहचान गीता के रूप में हुई है। महिला के परिवार ने मालिक कपिल पर हत्या करने का आरोप लगाया है। शाहदरा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया है कि एक कॉल प्राप्त हुई कि एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहीं शुरुआती जाँच में पुलिस का कहना है कि फ्रिज से करंट लगने से महिला की मौत हुई है। मृतक महिला की पहचान जगतपुरी निवासी गीता के रूप में हुई है। जगतपुरी थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत की धारा में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कपिल को भी गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मोहित, क्या हुआ आपकी मम्मी के साथ? मेरी मम्मी के साथ ये हुआ है, इन्होंने मारा मेरी मम्मी को। हमारी मम्मी जाती थी इनके पास पैसे वैसे लेने, पहले कमेटी भरती थी, सोना रख रखा था ताकि हम गरीब थे, घर में पैसा नहीं था, मतलब ऐसी चीज़ें इकट्ठी की ताकि हम कुछ लेने आगे कुछ बन जाए। मम्मी ने मांगा होगा इससे पैसे वैसे कपिल से। कपिल कौन है आपका? कपिल कोई नहीं है, मतलब ऐसी एक काम करने जाती थी मम्मी इसके पास, और छोटे वाले भाई ने भी काम करा इसके पास। और इनने हमारी कमाई से इनने सोम बाज़ार में एक मकान भी लिया है। मम्मी मांग भी रही थी तो इनने कहा चलो कोई नहीं, हम ले लेते हैं, हम करते रहेंगे जो भी है जैसा भी है। अभी फिर मम्मी ने पैसे ऐसे मांगे होंगे कि अब तो अब सोचेंगे हमारे बड़े हो रहे हैं हम, जब छोटे थे तो देते थे हमारे सामने। कितने साल से मम्मी वहाँ काम कर रही है? मम्मी कर रही हैं कम से कम 10 साल हो गए उन्हें। 10 साल से? हाँ जी। तो सारे पैसे उनके पास जमा कराती? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कल क्या हुआ है? कल का तो मुझे कुछ पता नहीं, को मैं काम पे था, मम्मी भी घर पे ही थी कल। अच्छा, सुबह ही बुलाया उन्होंने मम्मी को फ़ोन करके, कपिल ने आ जाओ घर पे, वही फ़ोन करके बुलाता था। मैं तो मना भी करता था मम्मी मत जाओ वहाँ पे काम करने, फिर भी मम्मी जाती थी वहाँ काम करने। अच्छा, जब कल मम्मी गई है तो फिर आप लोगों को किस टाइम पता लगा क्या हुआ है? अभी मम्मी काम पे गई तो मेरे को छोटे वाले भाई ने फ़ोन करके बोला मम्मी बेहोश हो पड़ी है, तू एडगवार मिल। मैंने ठीक है, मैं एडगवार चला गया वहाँ, और अभी आज की बात, और मैं एडगवार चला गया सीधा वहाँ पे। जब इंतजार कर रहा हूँ तो मेरा छोटा वाला भाई अकेला ही आ रहा था वहाँ से मम्मी को लेके। जब उठाया मैंने देखा मम्मी थोड़ी बहुत ठीक होएंगी, नहीं तो डॉक्टर ने एकदम अचानक कहा मम्मी वो। तो आप लोग क्या मानते हैं जो मम्मी वहाँ गई है, वो क्या कह रहा है कि क्या हो गया तुम्हारी मम्मी को? कपिल वो कह रहा है करंट लगा, और हमारे ये है मम्मी को उनने मारा भी है। आपको किन्हीं फोटो दिखा देता हूँ, मम्मी के यहाँ लगी हुई है, नाखून लगा हुआ है, यहाँ लगी हुई है, यहाँ तपाई करी है मम्मी के साथ। और इनने पहले भी 2-3 बार इनने मम्मी को ऊपर हाथ छोड़ा, मैंने भी देखा। फिर भी मम्मी, मैं कहता था तुझे किसी दिन मारूंगा, फिर भी मम्मी ने कहा तू क्यों मारेगा, ऐसे कुछ कहेगा तू, ये है वो है, थोड़ा बहुत मम्मी ऐसे मतलब उसकी थोड़ा पर्ची ले लेती थी। अच्छा, कितना पैसा होगा जो मम्मी ने आपके वहाँ जमा किया? 10 साल से जमा करी थी मम्मी ने कम से कम 5 लाख रुपये उसके बाद जमा कर रखे हैं। हाँ, सोना भी है उसके पास मम्मी को, कान के कुंडल वगैरह हो गए, कड़े हैं। अभी हमने दिवाली पे भी। तो अब आपका क्या इल्ज़ाम है? आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या हुआ? अब हम ये चाहते हैं, उसे मारा है मम्मी ने, उसको मम्मी ने, उसने मारा है, मम्मी को मारा हमने, बस इतना मुझे पता है। हम पे उस पर डाउट भी होता था, वो अपने बाप को भी मारता था। आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं अन्याय मिला हमारे साथ। और ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।